Assalamu alaikum, students of 9th class. How are you all, students? Hopefully, you all will be fine. Students, it is my lesson number 5B, and today we are going to study about the topic solubility, saturated solution, unsaturated solution, and supersaturated solution. Okay, and in the description box, I have given you a very informative video in which you can observe that how can we make the unsaturated, saturated and supersaturated solution practically. Okay, so now students, let's start our today's lecture. Students, I don't want to start the new topic today, so that's why I'm repeating the previous topic, because it needs the I think you need the time to complete the homework, so that's why I'm giving you the time and I'm not moving forward, because I think it will better to repeat this topic again. Okay, so you will get the time to do the homework. Okay, students. Now solubility. What is solubility? Now what is solubility? As you know that if in 100 ml of water, if we dissolve salt or solute, ठीक है, so that will be called as solubility. यानी कि 100 ml वाटर के अमाउंट इज एज सॉल्वेंट, और इस पर हम जितनी भी अमाउंट सॉल्ट की डिजॉल्व करेंगे वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी. ओके स्टूडेंट, फॉर सॉल्युबिलिटी 100 ml वाटर इज द कंडीशन, इतना होना चाहिए, उसमें जितनी अमाउंट भी सॉल्यूट की डिजॉल्व हो जाए वो जो सोल्यूशन बनेगा वो सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहलाती है. As in the on the screen you can see there is a beaker, there is 100 ml of water, and there is the salt dissolved in that, and with the help of glass rod we are dissolving the salt and we are showing the solubility in the diagram. I think you can understand the definition by the diagram of solubility. This diagram shows the solubility. Now I will explain the solubility. The amount in gram of a solute required to be dissolved in 100 gram or 100 ml of a solvent to prepare a saturated solution at room temperature is called solubility of that solute. That is, it is expressed in gram per 100 ml or gram per 100 gram at that specific temperature. यानी क्या मतलब है कि ख़ास टेम्परेचर पे, स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर अगर हम सोल्यूट की अमाउंट डालें, ठीक है ना, किसमें, सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट की अमाउंट क्या होनी चाहिए, 100 ml, ठीक है. फॉर एग्जांपल लाइक 100 ml वाटर, ठीक है, सॉल्वेंट इज़ 100 ml वाटर. अगर 100 ml वाटर लेते हैं और उसमें हम जो है सोल्यूट की अमाउंट ऐड करते हैं, ठीक है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, यानी कोई ख़ास अमाउंट नहीं चाहिए सोल्यूट की. हाँ, इतनी अमाउंट चाहिए कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, ठीक है ना. यानी अगर सोल्यूट की अमाउंट इतनी है, इतनी अमाउंट है उसकी कि जिससे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, और सॉल्वेंट की अमाउंट 100 ml हो, तो इस तरह का जो सोल्यूट जो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा उसे हम कहेंगे सोल्यूबिलिटी. ओके स्टूडेंट्स, होपफुली इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, ठीक है. अमाउंट ऑफ सोल्यूट इट इज़ नॉट पर्टिकुलर, ख़ास अमाउंट नहीं है. हाँ, इतनी अमाउंट हो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, ठीक है. तो किस में, 100 ml ऑफ वाटर में. तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, दिस टाइप ऑफ सोल्युबिलिटी, दिस टाइप ऑफ डिजॉल्विंग इज कॉल्ड एज अ सोल्युबिलिटी. ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है वो हम नेक्स्ट जो है इसको हम अभी स्टडी करेंगे कुछ देर बाद. ओके, now first of all I would like to move towards the unsaturated solution. ठीक है, what is the unsaturated solution? unsaturated solution क्या होता है, ठीक है. unsaturated solution एक ऐसा solution होता है, ठीक है, it is such type of solution in which the amount of solute is less than the capacity of the solvent to be dissolved. ठीक है, देखिए क्या मतलब है, यानी एक सोल्यूट की ऐसी इतनी अमाउंट हो सॉल्वेंट के अंदर कि जो बहुत कम अमाउंट है, यानी सॉल्वेंट जितनी डिज़ोल्व कर सकता है सोल्यूट को, उसके मुकाबले में बहुत ही कम अमाउंट सोल्यूट की है, ठीक है, बहुत कम अमाउंट है सोल्यूट की. तो इस तरह का जो सोल्यूशन है वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा. फॉर एग्जांपल, आई गिव यू एन एग्जांपल, इफ़ देयर इज़ अ फुल बीकर, ठीक है, फुल बीकर विथ वाटर, ठीक है, वाटर के साथ एक फुल बीकर है हमारे पास, और उसमें हम बिल्कुल हाफ स्पून सॉल्ट ऐड कर दें, राइट, ओनली हाफ स्पून सॉल्ट. तो इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि जो वाटर है वो और ज़्यादा सॉल्ट को डिज़ोल्व करने की एबिलिटी रखता है, लेकिन हम उसमें और सॉल्ट ऐड नहीं कर रहे हैं, हम कम अमाउंट सॉल्ट की ऐड कर रहे हैं. तो इस तरह का जो सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होगा उसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन.
Okay, students. I'm again repeating what is the unsaturated solution. The solution in which the amount of solute is less than the capacity of the solvent to be dissolved is called as the unsaturated solution. Okay, I'm reading few points from the book. देखिए preparation of unsaturated solution कैसे prepare कर सकते हैं इसको. Take a few crystals of sugar and dissolve them in a glass of water. This rest it's in an unsaturated solution because the solution has a capacity to dissolve more crystals of sugar solute at a given temperature. ठीक है ना. ये जो टेम्परेचर है, जो ख़ास टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर हो सकता है, जो भी ख़ास स्पेसिफिक टेम्परेचर है उसके उस पर हमने शुगर की कुछ अमाउंट डाली हमने सॉल्वेंट के अंदर, और हमें पता है कि जो सॉल्वेंट है वो और ज़्यादा सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है. ठीक है, यानी सॉल्वेंट हैज़ द कैपेसिटी टू डिज़ोल्व मोर सोल्यूट. ठीक है, और ज़्यादा शुगर को डिज़ोल्व कर सकता है, लेकिन हम इसमें और ज़्यादा अमाउंट ऐड नहीं करें, थोड़ी सी अमाउंट हमने ऐड की है, तो इस तरह का सोल्यूशन कहलाएगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. राइट, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. Okay, in the diagram you can see solute is written as less. Okay, now students move towards the next definition, that is a saturated solution. Now what is the saturated solution? In your book you can see the definition. A saturated solution is that one which contains maximum amount of solute in a given solvent at room temperature. ठीक है, what is the condition? They should be the room temperature. room temperature के ऊपर जो solvent की amount है उसके अंदर जो है सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट हम ऐड करें. ठीक है, यानी क्या मतलब है, आपके पास जो है सॉल्वेंट है, रूम टेम्परेचर है, और उस रूम टेम्परेचर पे आपने सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट ऐड कर दी. मैक्सिमम अमाउंट से क्या मतलब है, यानी इतनी अमाउंट हमने ऐड कर दी कि उससे ज़्यादा अमाउंट उस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं हो सकती. ठीक है ना. हम ये हमने जो है हमने बीकर लिया, उसमें हमने सॉल्वेंट लिया, उसमें हमने सोल्यूट शुगर ले लिया हमने. अब हम शुगर ऐड करते जा रहे हैं उस बीकर के अंदर, हम शुगर ऐड करते जा रहे हैं और साथ साथ उसको डिज़ोल्व करते जा रहे हैं, उसको स्टिरिंग करते जा रहे हैं. स्टिरिंग यानी इसको शेकिंग करते जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड. ठीक है ना. अब हम जब उसमें और शुगर ऐड करते जा रहे हैं और डिज़ोल्व करते जा रहे हैं, ठीक है, एक टाइम आएगा जब हम देखेंगे कि शुगर उस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना रुक गई है, स्टॉप हो गई है शुगर, और जो हम शुगर ऐड कर रहे हैं वो शुगर उसमें डिज़ोल्व नहीं हो रही है. हम कितनी भी देर स्टिरिंग करते रहें वो शुगर उसमें डिज़ोल्व नहीं हो रही उसी रूम टेम्परेचर के ऊपर. तो जब ये स्टेज आ जाए तो क्या होता है, इट विल बी आवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. यानी अब जो है सॉल्वेंट में कैपेसिटी नहीं है कि वो और ज़्यादा सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सके, उसने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपने अंदर डिज़ोल्व कर लिया है. ठीक है, तो इस तरह का जो सोल्यूशन है उसे हम कहते हैं saturated solution. Okay students, hopefully you understand it. Now move towards the supersaturated solution. Now what is the supersaturated solution? Supersaturated solution is that solution in which there will be the amount of solute is greater than the कैपेसिटी ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक है ना. यानी जो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट विच कंटेन्स ग्रेटर अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सोल्यूट दैन दैट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर. ठीक है, क्या मतलब है, यानी जो आपके पास आपने जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, आपको पता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे और सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा. ठीक है, लेकिन आप उसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद उसमें आप अपनी मर्ज़ी से और ज़्यादा सोल्यूट ऐड करते जा रहे हो, यानी आप और ज़्यादा शुगर उसमें ऐड करते जा रहे हैं, यानी एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर उसमें ऐड करते जा रहे हैं. पता है कि डिज़ोल्व नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप उसमें ऐड करते जा रहे हैं. ठीक है, तो ऐसा सोल्यूशन क्या होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. ठीक है, यानी जो है आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है, आपकी डिसॉल्विंग ये सोल्युबिलिटी स्टॉप हो चुकी है, बट आफ्टर इवन दैट यू आर एडिंग मोर सोल्यूट लाइक शुगर इन द सॉल्वेंट, एंड यू नो दैट द सॉल्वेंट विल नॉट डिसॉल्व दिस more amount of sugar, this excess amount of sugar, right, but you are adding that, so such type of solution will be called as the super saturated solution. Okay student, hopefully you understand what is the unsaturated solution, what is the saturated solution, and what is the super saturated solution, right. ठीक है, तो in okay, on the screen students you can see a diagram of a super saturated solution. अब देखिए इसमें जो बीकर है, बीकर में जो सॉल्वेंट लाइक वाटर है, इसमें अब देखें जो शुगर है, कितनी ज़्यादा शुगर एडेड है इसमें. ठीक है ना, इतनी ज़्यादा एडेड है कि अब वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकती.
तो इस तरह का जो सोल्यूशन है दैट इज़ कॉल्ड एज द सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन।